Good morning, students. Welcome to Finance Career. And this is our own channel for finance related exams. ठीक है whatever the posts, whether it is Group B or Group C, all the courses for these type of exams, ठीक है, are covered in our website. Our platform provides all the courses for this. The name of the website is Finance Career. You can just go to the website, that is Finance Career, finance career.in, and check out all the courses. Recently the non technical courses, टेक्निकल कोर्सेज तो थे पहले से, अभी कुछ टाइम पहले आपका जीके जीएस का कोर्स लॉन्च हुआ था, जीके जीएस अलॉन्ग विथ इंग्लिश, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है. एंड नाउ वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड द नॉन टेक्निकल पार्ट, दैट इज़ फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग. ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग. तो you can just go to our website and check out the courses, the non-technical power pack. ठीक है, few things are provided. I've given you all the details here, that maths, quantitative aptitude and reasoning will be covered here for all the PCU, finance and government exams. ठीक है, let me zoom it a bit. Just zoom it a bit. Okay, so what is provided in the course? Quantitative aptitude and reasoning will be covered completely. This will be especially focused for PSU finance exams and the government exams of this sector. Okay, as you know, our channel is uh, specifically focused on the finance related exam, whether it is for CA, CMA or normal bachelors. ठीक है, तो what we have, shortcut techniques will be provided, video lectures along with uh, some notes. For maths you don't have much notes, but I'll try to provide at least 1 to 2 pages of notes for each chapter. Okay, MCQs will be provided, large number of MCQs will be provided along with the video course. ठीक है, at first what will be done, that your syllabus will be covered, and uh, all the questions that I have taken in the PDFs, that means for classes, are either PYQs or related to PYQs. ठीक है, related to PYQs, and I have just limited the syllabus, and all the question types have been covered. Those are essential for your exams. ठीक है, these are the things will be provided. Then what we have, what is the price? If we see, like we can see that for reasoning you have separate batch, and for maths also you have separate batch. It is 649 I guess. ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे होते रहता है वो. लाइक से प्राइस इज गिवन, हाउ मच, 649 फॉर 6 months, 649 for 6 months, and for 12 months it is 799. And if you buy the packaged one, ठीक है, for any exam, like कोई भी एग्जाम आया है, AA का कोर्स अभी जैसे हमारा लॉन्च होगा, पावर पैक. ठीक है, इफ़ यू बाय पावर पैक आपको और ज़्यादा ये कम प्राइस में या डिस्काउंट में ये मिल सकता है. ठीक है, नाउ व्हाट वी सी, वी हैव कोर्सेज फॉर रीजनिंग एंड maths also, quantitative aptitude also. ठीक है, and what we see more, these are the different courses. ठीक है, finance related non technical courses, PSU for GKGS, and we also have for maths, reasoning and all. ठीक है, English, current affair, we have different course. ठीक है, just go to our website and check it out. Thank you. ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. तो आज हमारा जो PYQ सीरीज़ चल रहा है, ठीक है, उसमें मैथ्स का पहला वीडियो आ जाएगा. ठीक है, तो एक PYQ सीरीज़ चल रहा है जिसमें अभी तक
हमने क्या कवर किया था, रीजनिंग के 4-5 वीडियोस कवर किए हैं, ठीक है, रीजनिंग कवर किया है। अब आते हैं हम लोग मैथ्स को शुरू करते हैं और साथ में, ठीक है, मैथ्स को शुरू करते हैं और साथ में आपका रीजनिंग का भी वीडियोस आता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो जो भी हमारे कोर्सेस है, जैसे मैंने बताया हुआ है आपको, पेड कोर्स जो भी लेना है आप लोग हमारे वेबसाइट, जो यहाँ लिंक दिया हुआ है, लिंक मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं और जस्ट लुक एट द कोर्सेज दोज आर प्रोवाइडेड, जैसे ऑयल इंडिया या फिर एनटीपीसी वगैरह का सबका हमने पैकेज बैच लाया हुआ है, आप वो भी ले सकते हैं। या फिर जिन्हें इंडिविजुअल कोर्सेस लेने हैं, मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, या फिर जीके जीएस इंग्लिश, आप वो सब भी ले सकते हैं। हमारा टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, ठीक है, सब कुछ देख सकते हैं। जस्ट विजिट आवर वेबसाइट एंड हैव अ लुक एट इट, ठीक है। चलिए, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के पहले मैं एक रूल आपको बता दूं, जैसे कोई भी एक चीज़ है, लाइक 1000 उसका प्राइस है, ठीक है, 1000 वैल्यू है, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें 30% इंक्रीज करना है, ठीक है। नंबर ए 30% इंक्रीज करना है और नंबर बी 20% डिक्रीज करना है, ठीक है, कम करना है। तो कैसे करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, लाइक जो टोटल है हमारा 1000, जब इंक्रीज करना है तो इनटू 100 प्लस जो ये परसेंटेज है, ठीक है, यानी कि 30, तो इंक्रीज परसेंट कर देते हैं बाय 100, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 1000 इंटू 100 प्लस इसका वैल्यू क्या है, 30 है, तो 100 प्लस 30 इज 130 बाय 100, ठीक है। तो इट विल बी 1300, इतना हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, जब हमें डिक्रीज करना है तो डिक्रीज की जगह क्या हो जाएगा, माइनस वो परसेंट हो जाएगा, लाइक 1000 इंटू 100 माइनस कितना डिक्रीज करना है, 20%, तो 20 बाय 100, दैट इज 100,000 इंटू 80 बाय 100, ठीक है। अब जैसे क्या है कि इसका तीसरा कंडीशन अगर हम लोग लेते हैं, उसमें क्या ले लेते हैं कि पहले हम लोग को 30% इंक्रीज करना है, ठीक है, पहले 30% इंक्रीज करना है, फिर 20% डिक्रीज करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो जब 30% इंक्रीज करना है तो क्या हो गया, 1000 इंटू 100 प्लस 30 बाई 100, ठीक है, फिर 20% डिक्रीज करना है, यानी कि 100 माइनस 20 बाई 100, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 130 बाई 100 इंटू 80 बाई 100, फिर फाइनल कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मैंने ये कंसेप्ट क्यों बताया, क्योंकि आपके ये जो OIL के जो PYQs हैं, ठीक है, मैथ्स में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं 2025 में, इस फार्मूला से रिलेटेड आपका 2 से 3 क्वेश्चन है, ठीक है, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस है। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोला जा रहा है कि करंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना, ठीक है, इट इंक्रीजेज बाय 10%, ठीक है, टोटल कितना है हमारा 11875 है, ठीक है। तो इंक्रीज क्या हो रहा है, पहले +10, फिर +44 और उसके बाद डिक्रीज हो रहा है 30%, -30, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, व्हाट इज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, है ना। फर्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड ईयर में 44% इंक्रीज हो रहा है और थर्ड ईयर में 30% डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कि 3 साल के बाद पॉपुलेशन, ये क्या है हमारा करंट पॉपुलेशन है, ठीक है, 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगा। तो बस जो फार्मूला अभी हमने देखा उसको डायरेक्ट निकालेंगे। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 years इक्वल्स टू
तो करंट पॉपुलेशन 11875 इंटू पहले क्या हो रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 प्लस 10, 110/100, फिर 44% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 प्लस 44, दैट इज़ 144/100। एंड थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है 30% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 माइनस 30, यानी कि 70/100। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे जो भी है, देखिए कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, 25 4 ज़ा, ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू जो है आई थिंक ये आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो 25 4 कर सकते हैं, इसको 25 से काट सकते हैं। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको जो डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल वो बता दूंगा। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा होगा क्लास 6 7 8 9 में, 8 9 में तो नहीं बट क्लास 6 7 तक पढ़ा होगा आपने ये। ठीक है, शायद 8 में भी। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उससे डेडिकेटेड। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया 13167 एट द एंड ऑफ 3 years। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस मच। सेम क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला जा रहा है कि करंट पॉपुलेशन है इतना, तो डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। पॉपुलेशन आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा 187,500 इंटू पहल फर्स्ट ईयर क्या हो रहा है 64% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 प्लस 64 दैट इज 164/100। सेकेंड ईयर 5%, चलिए फिर से लिखना पड़ेगा अभी, तो क्या हो गया, क्या बोला जा रहा है कि 3 साल में पॉपुलेशन बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट करंट पॉपुलेशन क्या है हमारा 187,500, तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं स्टेटमेंट पॉपुलेशन आफ्टर 3 years या फिर पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3 years। वैसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 187,500 इंटू पहले क्या है 64% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 100 प्लस 64 दैट इज़ 164/100, फिर 5% इंक्रीज हो रहा है तो 105/100, और लास्ट में क्या हो रहा है कि 12% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 88/100, 100 माइनस 12/100 दैट इज़ 88/100। कैलकुलेट कीजिए इसको, 0 0 गया। ठीक है, और देखिए कैलकुलेट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 284,130। ठीक है, 284,130, सी इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है कि ABC टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 3 days। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के वीडियो में मैंने आपको LCM रूल बताया था एक। ठीक है, LCM रूल बताया है, ये LCM रूल मैंने पेड कोर्स में बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो LCM रूल में क्या होता है कि देखिए, एक तो आपका जो बेसिक मेथड है आपको अगर वो सही लगता है तो आप उससे कर सकते हैं, बट हम लोग LCM रूल यहाँ फॉलो करेंगे। तो क्या दिया गया है कि A प्लस B प्लस C, ये काम को कितने टाइम दिन में कर रहा है 3 days। उसके बाद A अलोन कर रहा है 21 days, A अकेले कर रहा है 21 days, और B अकेले कर रहा है 28 days। ठीक है, क्या करेंगे इसका LCM लेंगे। ठीक है, LCM कितना हो जाएगा 84। ठीक है, 84 हो गया। अब A प्लस B प्लस C, देखिए एक चीज़ समझिए, ये जो 84 आया हमारा, ये जो LCM आया 84, ठीक है, ये जो 84 आया ये क्या होगा हमारा टोटल वर्क होगा। ठीक है, टोटल वर्क होगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि A प्लस B इज 1 day वर्क।
1 डे वर्क, तो कितना हो जाएगा 84/3, दैट इज 21, 3 2 6, 2 6 और 3, हाँ 28 हो जाएगा, सॉरी 28 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 84/21, दैट इज 4 यूनिट्स। एंड बीज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 84/28, दैट इज 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट। तो अब इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं, या चलिए देखते हैं इसमें आ जाए तो सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क है, ये आ गया। तो अब हमें निकालना है क्या है कि हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू फिनिश द सेम वर्क। ठीक है, सी टेक टू फिनिश द थ्राइस द सेम वर्क, है ना। टोटल वर्क अभी कितना है 84 यूनिट्स है। ठीक है, तो इसका 3 गुना वर्क है। ठीक है, चलिए उस पर आते हैं, उसके पहले निकालते हैं। लाइक ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहा है, सी इज 1 डे वर्क, ये कैसे निकल जाएगा। ठीक है, हमें बी ए का पता है, बी का पता है, और ए प्लस बी प्लस सी का पता है। तो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो सी का एक दिन का काम आ जाएगा, यानी कि 28 माइनस 4 प्लस 3, दैट इज 21 यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 21 यूनिट ऑफ वर्क आ गया। ठीक है, 21 यूनिट वर्क कौन कर रहा है, तो 21 यूनिट जो है किसका है, सी का एक दिन का काम है। ठीक है, सी का एक दिन का काम है 21 यूनिट्स। अब हमें निकालना है क्या है कि सी को 3 गुना काम, इसका 3 गुना काम, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया। चलिए यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या नोट डाउन कर के रख सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ। तो क्या क्या है हमारा कि देखिए, हमें मतलब क्या चीज़ से है कि सी एक दिन में कितना काम करता है और टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो टोटल वर्क था कितना, टोटल वर्क था 84 यूनिट्स। ठीक है, और सी जो है, सीज 1 डे वर्क कितना था, सीज 1 डे वर्क था 21 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है कि सी को ये जो वर्क है इसका थ्राइस, यानी कि न्यू वर्क कितना हो जाएगा 84 का थ्राइस। ठीक है, इतना यूनिट्स हो गया। अब इस काम को करने में सी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 84 इंटू 3/21, दैट इज 21 4 ज़ा, तो 12 डेज हो जाएगी। ठीक है, 12 डेज हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए, ये मेथड आपको अभी थोड़ा सा लेंदी लगा होगा शायद। ठीक है, बट वो इसलिए लगा क्योंकि मैंने इतना स्टेटमेंट्स वगैरह लिखा। ठीक है, मैं आपको एक बार बिना स्टेटमेंट लिखे हुए दिखाता हूँ ये करके। ठीक है, तब शायद आप लोग को शॉर्ट लगे। ठीक है, चलिए आते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है 3 दिन में। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है 3 दिन में, ए कर रहा है 21 डेज में, और बी कर रहा है कितना 28 डेज में। एलसीएम लेते हैं इसका 84। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया 84/3, दैट इज 4 यूनिट्स। ए प्लस ए का एक दिन का काम कितना हो गया 84/21, 21, सॉरी ये 20, एक सेकेंड, ये गलत हो गया है। ठीक है,
84/3, 84/3 इज 28 यूनिट्स। ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना हो गया, ए का एक दिन का काम हो गया 84/21, दैट इज 4 यूनिट्स और बी का एक दिन का काम कितना हो गया 84/28, दैट इज 3 यूनिट्स। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी का माइनस कर देंगे तो सी का कितना आ जाएगा, 28 माइनस 4 प्लस 3 7, यानी कि कितना आ गया 21 यूनिट्स एक दिन का काम। ठीक है, सी का एक दिन का काम आ गया 21 यूनिट्स। अब क्या करना है, टोटल वर्क क्या है हमारा, ये है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, लेकिन ये काम नहीं, इसका 3 गुना काम करना है। न्यू टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना है, तो ये भी हमें लिखने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है, ये भी हमें लिखने का ज़रूरत नहीं था। हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि टोटल काम कितना हो जा रहा है हमारा, तो 84 इंटू 3 हो जा रहा है। ठीक है, और सी को करना है इस काम को, तो सी एक दिन में कितना काम करता है 21 यूनिट्स करता है। ठीक है, तो बस हो गया ये 21 4 4 3 12 डेज। ठीक है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, बट जब आपको मेथड पता चल जाएगा तो आपको बस इतना करना है। ठीक है, इनफैक्ट इससे थोड़ा और शॉर्ट में हो सकता है, बट मैं उतना नहीं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, आपको बस ये मेथड फॉलो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये बॉडमास रूल है आपका, 2 क्यूब इज 8 माइनस 25 प्लस 36/3 इज 12, तो 12 स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 0 इज 0। ठीक है, तो अब ऐड कीजिए इसको, तो क्या है आपका ये इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। 152 माइनस इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, माइनस 30, दैट इज 122। ठीक है, दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कवर्स 467 किलोमीटर्स, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अ पर्सन कवर्स 467 किलोमीटर्स इन 14 आवर्स इफ इज स्पीड फॉर द फर्स्ट इतना किलोमीटर इज इतना। ठीक है, तो पहले यहाँ से टाइम निकाल देंगे, T1 कितना आ जाएगा 158/79, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये आ गया 2 आवर्स। ठीक है, तो इस टाइम लेफ्ट कितना है, टाइम लेफ्ट कितना हो जाएगा, पहले 14 आवर्स, मतलब उसको टोटल जर्नी कितना 14 आवर्स करना है, 2 आवर्स उसने कर लिया है, तो 14 माइनस 2 दैट इज़ 12 आवर्स टाइम उसके पास बचा हुआ है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना बचा हुआ है, डिस्टेंस लेफ्ट, उसे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 467, उसने कितना कर लिया है 158 उसने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना बच रहा है, डिस्टेंस बच जाएगा, ये माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 309 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि व्हाट फाइंड द स्पीड ऑफ द रेस्ट ऑफ द फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो स्पीड S2 क्या है हमारा, ये है स्पीड फॉर द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा क्या है 309 बाय कितना टाइम बचा हुआ है 12 आवर्स बचा हुआ है 12। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 25 12 है ना 25 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 25.75 आई थिंक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 25.75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या किया हमने, पहले जितना डिस्टेंस उसने कवर किया था उसको टोटल डिस्टेंस से माइनस किया, इस डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लगा था 2 आवर्स लगा था, तो टोटल टाइम से उसको माइनस किया, तो हमारे पास 12 आवर टाइम बचा और इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने का बचा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 2 ट्रेन्स। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ऐसा होता है कि जैसे स्पीड है ना। अच्छा, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 2 पॉइंट है,
पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन निकल रही है और यहाँ से एक ट्रेन निकल रही है। एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो कोई तो एक पॉइंट होगा ना जहाँ पे ये क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ये क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉस करने के बाद क्या हो रहा है कि एक ट्रेन जो है जिसकी स्पीड 150 है, ठीक है, ये 6 आवर में, सॉरी ये 10 आवर में, ठीक है, ये 10 आवर में कहाँ पहुँच जा रहा है, बी पे पहुँच जा रहा है। ठीक है, और ये जो ट्रेन है, यहाँ से जो ट्रेन खुली थी, ठीक है, वो क्या हो रहा है, 6 आवर में पहुँच जा रहा है कहाँ, ए पे पहुँच जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के दोनों का डेस्टिनेशन अपोजिट है ना। ठीक है, बी को जाना है ए के पास और एक ए पॉइंट पे जाना है, और ए यहाँ से जो ट्रेन खुल रही है उसको कहाँ जाना है, बी पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद क्या हो जा रहा है कि 10 आवर्स और 6 आवर्स में अपोजिट पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक फर्स्ट ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है जो कि स्लोअर है। ठीक है, ये S2 है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा, ये हमारा T2 हो गया, ये हमारा T1 हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, S1 निकालना है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, ये है। ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग फार्मूला पे। तो फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला बोलता है कि जैसे एस, एक सेकंड, एस फास्टर बाय एस स्लोअर इक्वल्स टू रूट अंडर टी स्लोअर बाय टी फास्टर। या इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अगर फार्मूला को, तो S1 बाय S2 इक्वल्स टू रूट अंडर T2 बाय T1। ठीक है, तो S2 हमारा कितना था, 150। ठीक है, T2 हमारा कितना था, 10। T1 कितना था हमारा, 6। हमें निकालना है S1, तो S1 इक्वल्स टू S2 उधर चले जाएगा, यानी कि 150 इंटू रूट अंडर 10/6। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रॉक्स 194 आएगा। ठीक है, 194 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका, तो इसको याद रखना है। और ये एक बहुत ही मतलब ट्रेन वाला जो क्वेश्चन आता है उस पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाइप ए कैन फिल, तो ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, ये पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, ये पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, अभी मैंने आपको जो टाइम वर्क में बताया ना, टाइम एंड वर्क में जो LCM मेथड बताया ना, सेम मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इनफैक्ट ये जो है एक पार्ट है किसका, टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उसी का एक पार्ट है ये। ठीक है, उसके अंदर जब आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पेड कोर्स में। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है कि टैंक ए कैन फिल अ टैंक, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। ए कर रहा है 6 आवर में। ठीक है, बी कर रहा है 28 आवर में, और सी कर रहा है इसी को फिल कितने दिन में, सी इसको कर रहा है 21 आवर में। LCM लेंगे तो LCM कितना हो गया, 84। ठीक है, तो ए कितना यूनिट काम करेगा एक दिन में, 14 यूनिट्स। ठीक है, बी कितना यूनिट करेगा, तो 14 कहाँ से आया, 84/6। ठीक है, आ गया 14। फिर बी कितना करेगा, तो 84/28, दैट इज 3 यूनिट्स। ठीक है, 3 यूनिट्स, यूनिट लिख देते हैं। ठीक है, और सी कितना करेगा, सी करेगा 84/21, दैट इज 4 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, टाइम टेकन बाय देम टू फिल 3/4 ऑफ द सेम टैंक। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है हमारा, 84 है, बट हमें काम कितना करना है, वर्क टू बी डन कितना है, 3/4। किसका 3/4, जो टोटल वर्क है, यानी कि 84 का।
ये आ गया हमारा 63 यूनिट्स। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 14 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 21 यूनिट्स। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, कितना हो जाएगा? 63 टोटल वर्क है बाय 21 दैट इज 3 क्या है, आवर है ना, हाँ 3 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा तरीका से क्या है आपका जो टाइम एंड वर्क है उसका, उसमें जो एलसीएम मेथड लिया था मैंने, जो बताया आपको अभी, ठीक है, वही मेथड यूज़ होता है और ये बहुत ही अच्छा मेथड है, इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। When the selling price of piano is इतना, the shopkeeper incurs a loss of कितना? 20%, है ना। एक फार्मूला होता है, ऐसे बेसिक मेथड से भी इसे हम बना सकते हैं, बट हम लोग फार्मूला पे आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? एस पी इक्वल्स टू सी पी इंटू 1 माइनस या फिर 100 माइनस एल परसेंट बाय 100, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो एस पी कितना दिया है? 24,000, सी पी हमें निकालना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लिए कि जब 24,000 में एक पियानो को बेचा गया, ठीक है, तो जो दुकानदार है उसे 20% लॉस हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीपी निकालेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तो 100 माइनस एल परसेंट यानी कि 20%, दैट इज 80/100। ठीक है, तो यहाँ से सीपी आ जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, ₹30,000। सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि अब सीपी हमें पता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पियानो सो एज टू गेन 20%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि अगर गेन पे निकालना है तो कितना हो जाएगा प्राइस। ठीक है, तो गेन पे कैसे हो जाएगा? सेम फार्मूला लगाएंगे हम लोग, एस पी इक्वल्स टू सी पी। सी पी कितना है हमारा? 30,000 इंटू 1 प्लस या फिर 100 प्लस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं इसको। ठीक है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया ना, कितना हो जाएगा? 100, 20% गेन करना है यानी कि 20% इंक्रीज करना है, तो 120/100, तो ये आ जाएगा 12 3 36,000। 36,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, बट लेंदी एज इन 2-3 कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे, बट थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आपको ये लेंदी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आते हैं, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि एवरेज हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स इज इतना। ठीक है, तो एवरेज चैप्टर से ये क्वेश्चन, तो क्या बोला जा रहा है, जो 9 स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल एवरेज हाइट कितना है? 178 है। ठीक है, तो पहले टोटल निकाल लेते हैं, टोटल हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 9 इंटू 178। ठीक है, ये फार्मूला होता है टोटल इक्वल्स टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर नंबर ऑफ जो भी पार्टिकल्स हैं या आर्टिकल्स हैं, 1602 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि दो और स्टूडेंट जिनका हाइट 162 है और 134 है, ठीक है, वो लोग इसमें आते हैं, बट 4 स्टूडेंट्स जिनका एवरेज हाइट इतना है वो लोग छोड़ देते हैं, है ना। तो न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले निकाल देते हैं। क्या हो जाएंगे? पहले 9 थे, उसमें दो आए नए, बट उसमें से 4 ने छोड़ दिया, तो ये कितना बच गया? 9 और 2 11 माइनस 4 दैट इज
7 स्टूडेंट्स। ठीक है, 9 स्टूडेंट थे, फिर 2 स्टूडेंट आए तो 11 हो गया, बट 4 स्टूडेंट जो पुराने थे उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो 7 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अब ये जो 2 स्टूडेंट आए हैं, ठीक है, ये जो 2 स्टूडेंट आए हैं, इनका हाइट कितना है? इनका हाइट दिया हुआ है 162 प्लस 134। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ कैलकुलेट नहीं करते हैं, एक ही बार में करेंगे, या फिर कर भी सकते हैं। 4 2 6 639 और 112 296 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट्स जिन्होंने छोड़ा था, ठीक है, जिन्होंने छोड़ा था, उनका हाइट कितना हो जाएगा? उनका एवरेज हाइट कितना हो जाएगा? उनका दिया हुआ है क्या? चलिए इधर ही निकाल देते हैं। उनका दिया हुआ है 197 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल हाइट कितना हो जाएगा इनका? 4 इंटू 197। ठीक है, तो ये हो गया 204 ज़ा 800, 800 में 3 4 ज़ा 12 गया, यानी कि 788। ठीक है, 788 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए फिर से समझिए क्वेश्चन को, कि पहले 9 स्टूडेंट्स थे जिनका एवरेज हाइट दिया हुआ था इतना, तो उनका टोटल हाइट हमने निकाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि 9 स्टूडेंट्स में 2 नए स्टूडेंट्स आए, तो बाद में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में चेंजेस हो रहा है। 2 न्यू स्टूडेंट आए तो 2 हमने ऐड कर दिया, और क्या हो रहा है कि 4 स्टूडेंट जो है वो छोड़ के चले गए। ठीक है, 4 स्टूडेंट छोड़ के चले गए, तो क्या हुआ कि 9 प्लस 2 हुआ था, -4 कर दिए, तो बचा कितना हमारे पास? 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो 2 स्टूडेंट्स आए हैं, इनका हाइट दिया हुआ है कितना? दोनों का इतना। ठीक है, और ये जो 4 स्टूडेंट्स छोड़ के गए हैं, उनका हाइट आ रहा है इतना। अब क्या होगा? एक्चुअल हाइट, एक्चुअल टोटल, या फिर फाइनल लिखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा सा। चलिए, फाइनल हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 1602। ये लोग आए थे तो ये प्लस हो जाएंगे 296, और ये लोग गए थे तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1110 आ जाएगा। ठीक है, 1110 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ये जो 7 स्टूडेंट बचे हुए हैं, ठीक है, इनका एवरेज हाइट निकालना है। तो इनका एवरेज हाइट कैसे हो जाएगा? एवरेज हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स, चलिए रब करके कर ले रहे हैं। 1110 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, चलिए रब करके कर ले रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि एवरेज हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स जो बचे हुए, यानी कि लेफ्ट, इक्वल्स टू 1110 बाय 7। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स 158.6 सेंटीमीटर आएगा। 158 देखते हैं, चलिए कैलकुलेट करके, ऑप्शन में तो नहीं है। चलिए, तो 7 1 ज़ा 7 4, 7 1 ज़ा 7 4 1, 7 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35, 60, 7 8 ज़ा 56। ठीक है, 56, तो 158 पॉइंट समथिंग आएगा ये आंसर। ठीक है, 158.6 आएगा। ये शायद ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। ठीक है, चलिए यही इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलो, एंड द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। ये पेपर कौन से है? 2025 का जो PYQ है उसका है। ठीक है, बस बता दे रहा हूँ मैं, क्या करंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, पहले 40% इंक्रीज, फिर 25% इंक्रीज, और फिर 62% इंक्रीज। ठीक है, तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा? 16
1000 into 40, 140 by 100 into 125 by 100 into 38 by 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए और आपका वैल्यू वही 10640 आ जाएगा। ठीक है, ओके, दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्लास, मैथ्स क्लास। होप यू गाइस एंजॉयड इट। और जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेरीज हो, या फिर आप कमेंट भी कीजिए, मैं अपने आईडी से वहाँ रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप वॉचिंग।